Hello. Yeah, keep your mic off. And keep your video also off, beta. Okay, sir. Okay, so we can start. ठीक है बेटा? Because we have total only 40 minutes there. So we'll start right now. Page number 187, level 2. I'll be solving odd numbers. ठीक है? Question number 1. Page number DC Pandey 187. So it's rotational motion, right? Rotational motion. ठीक है? So keep your mics off and videos off. I'll be doing some couple of sums and the lecture will be held twice a week. Okay. देखते हैं, शुरू करते हैं. Question number 1. In the figure shown, a ring of mass m is kept on a horizontal surface, while a body of equal mass m is attached to the string, which is wounded on the ring. When a system is released, the ring rolls without slipping. Consider the following statement and choose the correct options. यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक टेबल है, यहाँ पर ऐसे एक रिंग है, and a string is attached via a pulley, and there is a mass which is going down m. Okay, and इसका भी mass m है, and radius is r, and it is telling you that this ring is rolling. सही है? अच्छा ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 1. I'll draw a free body diagram of the mass. पहले तो उसका free body diagram will be tension is up, weight is down, and he is going down with an acceleration a. देख सकते हो ये पूरा रस्सी जो है, it is coming down with an acceleration a. Okay, the string is going this way na, with an acceleration a. अच्छा, one more thing, that this string is attached to the topmost part of the ring, and आपको मालूम है जब एक बॉडी रोल करता है तो the topmost part of the ring is going with 2 ACM, the center is going with ACM, and this point is the instantaneous axis of rotation which is at rest. आप सबको पता रहेगा ये तो. So can I say this is going with 2a, and what is a? A is this acceleration, because this has to be at rest. So if this point is going with 2a, this whole string will also be going with 2a. So this is not a, this will be 2a. So that means the mass which is there is going down with 2a. I hope you all are understanding क्या हो रहा है भाई. Okay. Yes, sir. Okay, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम में अगर हमको लिखना है F net is ma, तो कैन आई से बड़ो फोर्स माइनस छोटो फोर्स इज ma, तो ये नीचे जा रहा है, तो कैन आई राइट दिस एज mg माइनस t इज m into a, बट इसका a नहीं है, इसका a है 2a. कैन आई कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 1. भाई ठीक है, ये तो हो गया इसके साथ. ओके, अब हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. किसका फ्री बॉडी डायग्राम? रिंग का. Okay, so I'll go to the next page. Free body diagram, I'll make it of the ring. आपको मालूम है ये टेबल पे रोल कर रहा है. अच्छा, स्ट्रिंग कहां पर लगा है? स्ट्रिंग यहां पर लगा है, तो स्ट्रिंग के कारण यहां पर एक टेंशन आएगा. भाई आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा.
अच्छा यहां पर फ्रिक्शन भी आएगा बिकॉज आई टोल्ड यू दैट इट इज फोर्स लग रहा है, तो इट विल बी एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। एंड एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग में मैंने कहा था कि फ्रिक्शन एक्ट करता है, तो फ्रिक्शन या तो आगे हो सकता है या तो पीछे हो सकता है। आई विल कंसिडर द फ्रिक्शन टू बी आगे। आई एम कंसिडरिंग मतलब लेट मैंने अज्यूम किया यहाँ पर। बोलो। अच्छा और एक चीज, कैन आई से ही इज गोइंग आगे विद ACM एंड ये घूम रहा है विद अल्फा, बिकॉज सिंस इट इज रोलिंग आई नो दैट ACM should become equal to R alpha. I hope you all are writing with me also बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है सब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो इधर आ जाओ। अब इसका एफ नेट इज MA बनाते हैं। इसका अगर एफ नेट इज MA लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एफ नेट कितने फोर्सेस है, एक T आगे एक ये आगे F, सो कैन आई से T प्लस F इज इक्वल टू MA। T प्लस F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन A है, 2A नहीं है, इसका एक्सेलरेशन A ही है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 पकड़ते हैं हम लोग। जो पुराना वाला था दैट वाज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा और क्या पकड़ना है? वन मोर इक्वेशन आई विल गेट, दैट इज दिस इक्वेशन ACM इज R alpha, so can I say A is equal to R alpha, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा फोर्थ वाला इक्वेशन और एक इक्वेशन हमको मांगता है, कैन आई से tau net is I alpha? What is net torque? I alpha. अच्छा I will calculate torque of him about the center. Torque of him about the center is force into perpendicular distance, so it will become T into R. कैसे घुमा रहा है? ऐसे घुमा रहा है, माइनस F इंटू आर। सर वाई माइनस F इंटू आर, ये तो ऐसे घुमा रहा है ना, देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो रिंग को ऐसे घुमा रहा है। इज I इंटू अल्फा, व्हाट इज I फॉर अ रिंग? MR स्क्वायर इंटू अल्फा। So can I write this as T minus F into R is MR square into alpha? इक्वेशन नंबर क्या हो गया भाई? ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, 4। तो हमारे पास अभी 4 इक्वेशंस मौजूद है। आई आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? मैं फिर से वो 4 इक्वेशंस लिखता हूं। सबसे पहला इक्वेशन mg minus t is m into 2a। सेकेंड वाला इक्वेशन t plus f is ma। भाई ये किसका था? ये ब्लॉक का था ना बेटा, ये रिंग का है। तीसरा वाला क्या था? t minus f into r is mr square into alpha। एंड चौथा वाला क्या था? a was r alpha, याद है? ACM is r alpha। बोलो भैया, चलो आई ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? ओके। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप ये चारों इक्वेशंस को सॉल्व करो। आपको a ढूंढना है, आपको t ढूंढना है, ओके, और आपको f ढूंढना है। You can find the value of this. I have found out a का वैल्यू as g by 3, so 2a कितना हो जाएगा? 2g by 3। t का वैल्यू आएगा mg by 3, एंड फ्रिक्शन का वैल्यू आपको आएगा 0। ओके, द सम माइट सीम टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना रोटेशनल मोशन, तो आपको आ जाएगा। द चैप्टर्स ओनली लाइक दैट। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग इज 2g by 3। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग इज 2g by 3। ये तो रॉन्ग है ना? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग इज g by 3, बराबर है? तो 2g by 3 रॉन्ग है। एक्सेलरेशन ऑफ द हैंगिंग पार्टिकल इज 2g by 3 बिकॉज दिस इज 2a, बराबर। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स 0 आ रहा है।
And chauथा, frictional force acts in backward direction. So answer will become D. That is none of these. Answer will become D. तो ये चारों इक्वेशन को आप घर पे सॉल्व करो. 1, 2, 3, 4, and you will get the resultant answers. I hope you all are understanding what's happening. Question number 1 is over. Okay, we'll come to question number 3. Question number 3 क्या कह रहा है? For a uniform square plate of side A and mass of a square portion DEFG of A/2 is removed. देखो इधर ये पार्ट है, इसके 4 टुकड़े हैं. ओके, एंड हमने इतना हिस्सा निकाल दिया. अच्छा, ये साइड कितना हो जाएगा? A/2. I want to find moment of inertia about axis AB. अच्छा, axis AB किधर है? Axis AB ये है. मजा आएगा, देखो सब लोग इधर. तो ये इतना हिस्सा हमने निकाल दिया, इतना हिस्सा हमने इरेज कर दिया. बराबर. हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है? इतना ही निकालना है. हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने ही हिस्से का निकालना है. ये हिस्सा तो हमने निकाल दिया. ओके, कैन आई राइट दिस एज पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3? पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं. पार्ट 1 कितना साइड है बेटा? A/2. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर मांगता है. कैन आई से इट इज लाइक अ रॉड अबाउट वन एंड, rod of length L about one end, and what is the rod of length L about one end का moment of inertia? Moment of inertia will become ml square by 3. m कितना रहेगा? पूरा m है, उसमें से ये 1/4 पार्ट है, तो इसका m will not be m but it will become m/4. what is the length? Length is sir A/2 का square by 3. भाई ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये I1 कितना हो जाएगा? I1 ये हो जाएगा m/4, a square by 4, तो 4 4 16. yes or no sir? ओके, और कितना हो गया भाई? ये आएगा m/4 a square by 4 by 3 will be ma square by 16 3s. ओके, बराबर. ये आपको आंसर किसका मिला? I1 का मिला. Can I say similarly thing will be of I2 also? Because ये रेप्लिका ही तो है. So I1 and I2 का value will be the same. I1 and I2 will become same. Getting है ना? ये 48 आएगा, ma square by 48 आ जाएगा. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी और आगे बढ़ते हैं. We'll come to next one. अच्छा, जो पार्ट 3 था, जो थर्ड पार्ट था, वो तो इधर था, बट एक्सेस इधर था. Yes or no? देखो. We didn't get a copy of the previous slide. One sec. हाँ बेटा. Sir, in the lecture, in the video lectures, you were saying that if the axis of rotation is with the line of in the line of the particle, the I naught or IC is equal to 0, right? अरे बेटा, ये पार्टिकल थोड़ी है, ये तो एक रॉड की तरह है. दिस इज नॉट अ पार्टिकल. इज दिस अ पार्टिकल? No, sir. तो फिर पार्टिकल कहाँ से आ जाएगा? Okay. ओके, Yes, sir, done. प्लीज डोंट ड्रॉ. हु इज दिस? कौन है यार ये? ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग I'm clearing this. Yes, sir. Yes, sir, done. Somebody is locked it.
क्या है यार ये? Please don't do anything. We have very limited. चलो इधर जल्दी. अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक पार्ट बाकी था, राइट? पार्ट नंबर 3. ये जो ऐसे था उसमें से हमने इस पार्ट और इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया. इसको तो हमने निकाल दिया था, इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा. अबाउट विच एक्सिस बेटा? दिस एक्सिस. कैन आई राइट दिस एज 3 अबाउट दिस एक्सिस? अच्छा, कैन आई ड्रॉ अनदर पैरेलल एक्सिस ओवर हियर? बिकॉज ये डायरेक्टली एंड पर थोड़ी है, ये तो इधर है. ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा बेटा? ml स्क्वायर बाय 12. m इसका कितना है? m बाय 4. l कितना है इसका? a बाय 2 स्क्वायर बाय 12. ये इसका खुद का है, प्लस वी नीड टू ट्रांसफर दिस आल्सो ना बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम. कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज द डिस्टेंस? देखो ये है a बाय 2 और ये है a बाय 2. ये a है तो ये a है ना? नहीं, ये कितना रहेगा? Sir, won't it be a by 2 plus a by 4, na? by 4 हो जाएगा. Yes sir, a by 2 plus a by 4. a by 4, हाँ, a by 4. So we'll do it again. एक मिनट फटाफट, we'll do it fast. 1 2 3, this is removed. So this distance will be a by 2. If I need I1, it will be m by 4. Okay, L square, that is a by 2 का square by 3. This is same as I2. बोलो. अच्छा, I3 का क्या रहेगा? इधर का एक्सिस ड्रॉ करना है और ट्रांसफर करना है. So this distance will be a by 4 and this will be a by 2. So I3 will be m by 4 L square by 12. तो इसका L is a by 2 का square by 12 plus इसका mass into distance square. अच्छा, what is distance between them? a by 2 plus a by 4, that is कितना? 3a by 4 the whole square. What will be moment of inertia net? I1 plus I2 plus I3, and you will get the resultant answer. Okay sir, fine. Sir, हाँ बेटा. I have a question that if there's any lamina, like see, this is like a square piece this is like a square plate. If there's a triangular plate or something like that, we use the same I have logic. Triangular plate का जो method is there, I have explained it in objective question number 26. Yeah sir, I saw that. So then that in, because triangle जो है, it is not uniform ना बेटा. एक छोटा छोटा यहाँ से एक पट्टी लेना पड़ेगा, फिर ऐसे लेना पड़ेगा, फिर ऐसे लेना पड़ेगा. So it is not uniform. So since it is non-uniform, you have to apply that steps number 1, step number 2, step number 3 and integrate. yeah sir. तो आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा. अगर आप सम सॉल्व नहीं करेंगे तो नहीं आएगा. मतलब ओनली बाय लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर यू विल नॉट गेट द सम्स. आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें. ठीक है? सो वी विल डू इट. So हाँ बेटा. yeah, so like there are fixed bodies that this can all is the same, but like if there's like a square plate or that, you have to like
if it's uniform, then you go straight away with rod ka moment of with the inertia. formula. If it is a non-uniform Otherwise, you body, integrate. then you need to integrate. Okay. ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे बहुत सारे सम्स है, एडवांस बहुत Yeah. आराम से we'll be taking 5 to 6 lectures. You don't worry, we'll solve everything. Question Yeah. number 5. Okay, sir. A uniform solid cylinder of mass m and radius r is placed on a rough surface. Rough मतलब बेटा यहाँ पर friction है. Horizontal constant force is applied. अच्छा, force यहाँ पर लगा है. याद है मैंने इंट्रोडक्शन में आपको कहा था अगर फोर्स ऊपर लगा है ऐसे, याद है? ओके, सो दैट सिलेंडर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर हमको मांगता है. अच्छा, एक्सेलरेशन. ओके, इफ यू रिवाइज द इंट्रोडक्शन पार्ट, बेटा मैंने आपसे एक फॉर्मूला दिया था, छोटा f is mr square minus I upon mr square plus I into कैपिटल है. भाई याद आ रहा है कुछ इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में हमने आपको सिखाया था इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग. I'll give you the page number also. I'm finding the page number. 8 minute. Okay, I'll give you the page number also. ये मैंने आपको सिखाया था इन एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग, पेज नंबर 132. ये वीडियो पूरा बनाया था मैंने इसके ऊपर, ठीक है? अब कैन यू ऑल टेल मी बेटा, ये कौन सा बॉडी है? ये बॉडी एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr square by 2. yes or no? Yes, sir. हाँ, तो mr square by 2 if you put it over here, ये mr square by 2 if you put it over here, तो mr square minus I, ओके, अपॉन mr square plus I. सो f का वैल्यू कितना आएगा आपको? f का वैल्यू आपको आएगा -3/2. नो, -3/2. आप बराबर से करो बेटा, नीचे भी mr square plus I है, कितना हो जाएगा देखो? दिस विल बी mr square by 2, ऊपर नीचे विल बिकम 3/2 mr square. So 1/3f. हाँ, 1/3f आ जाएगा. ये Sorry, 1/3. 1/3f. सो f का वैल्यू कितना आया? 1/3f. मतलब ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये आगे है, एंड वैल्यू कितना है उसका? 1/3f है. पॉजिटिव आया ना ये नंबर बेटा, अगर ये नेगेटिव आता है इसका मतलब ये पीछे होता. Are you all understanding? Yes, sir. Now I require what, sir? I require the acceleration of the particle. Acceleration का फॉर्मूला क्या है? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. नेट फोर्स कितना लग रहा है? आगे लग रहा है F, और ये वाला लग रहा है 1/3 F by total mass. So what will be the resultant answer? 4/3 F by m. ठीक है? Got it? Yes, sir. So answer will become C. I hope you all are understanding. कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सम है एकदम. Okay. Go to the next question. Question number 6 भी देखो. Question number 6 देख लो. क्या पूछा? In the above question, frictional force is what? Frictional force का वैल्यू कितना आया था आपको? F/3 towards right. So this answer is A. भाई ठीक है ना? Yes, sir. Question number 7 पर आते हैं. We have only 10 minutes. I'll take the paid version of this, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अभी 1-2 लेक्चर थोड़ा सक्सेसफुल जाने दो, then I'll take the paid version only of this. Question number 7. They are telling you that there is a pulley over here, and there is mass of 2 kg which is attached. A small pulley of radius 20 centimeter, तो इसका radius is 20 cm, and moment of inertia is 0.32 kg meter square. Used to hang a 2 kg mass with the help of massless string.
So this is massless string. If the block is released for no slipping condition, the acceleration of the block, कह रहा है इसका नीचे जाने का acceleration कितना है. ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सम है. आप मुझे बताइए, ये T है, ये mg है, 2g है ना, इसका FBD अगर हम बनाते हैं तो ये 2, ये ऊपर रस्सी का टेंशन, ये 2g, and he is going down with acceleration है. तो इसका अगर FBD लिखना है, अगर इसका नेट फोर्सेस MA लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 2g minus t is 2a. F net is MA, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज MA. भाई ठीक है ना? यस सर. अब एक काम करो, इस पुली का FBD बनाओ. ऐसे पुली तो घूम रहा है, यहाँ पर रस्सी ने उसको खींच के रखा है टेंशन से. बस अगर यहाँ पर एक टेंशन आएगा तो यहाँ पर भी एक टेंशन आएगा, इंटरनल फोर्स है ना. ओके. सो इसका अगर टॉर्क इक्वेशन लगाना है, सो कैन आई से टाउ इज I alpha, and what is torque? T into R. T into R is I into alpha. Got it? What is torque? Force into perpendicular distance is I into alpha. Equation number 2. Okay, equation number 3 क्या है? Equation number 3 is that look at the pulley. पुली का ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब टेंजेंशियल है. एंड कैन आई से दिस इज नथिंग बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हिच इज R अल्फा. ये रेम है ना पुली का, ये पॉइंट जो है वो रेम है पुली का. एंड इन सर्कुलर मोशन जब भी रेम पे कोई चीज घूमती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है R अल्फा. तो हमारे पास कितने इक्वेशंस रेडी आ गए? देयर आर 3 equations. First equation आया 2g minus t is 2a. Second equation आया t into r is I alpha. And third equation is what? A is equal to R alpha. Can I say it is like equation question number 1 only? तो आपको ये तीनों equation solve करना है and you will get the value of A as 2 meter per second square. आपको बैठ के बराबर सॉल्व करना पड़ेगा. मैं ज्यादा सम नहीं सॉल्व कर रहा. आई एम सॉल्विंग टिल 9 ओनली. नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी मीट ऑन संडे वी विल सॉल्व मोर 10-12 क्वेश्चंस. तो हफ्ते में 2 बार लेक्चर रहेंगे. ठीक है? यस सर. Yes, sir. ठीक है. मगर ये 10 सम बराबर से प्रैक्टिस करना बेटा प्लीज. आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सब लोग इधर ध्यान देना, टाइम भी कम है हमारे पास. कह रहा है अ रॉड इज देयर. ये रॉड है. A rod is supported horizontally by means of 2 strings of equal length. If one of the string is cut, इसको हमने काट दिया, okay, then the tension on the other part of the string will. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, लॉजिकली बात करते हैं. ओके, लॉजिकली बात कर रहे हैं. अगर मैंने ये स्ट्रिंग को काट दिया तो रॉड क्या करेगा? रॉड विल रोटेट. बराबर है क्या? यस सर. रॉड विल रोटेट. सही है? अब आगे देखते हैं. सपोज एक मिनट, सपोज आई कट दिस. नाउ लिसन टू मी केयरफुली एकदम. ये पार्ट कट चुका. वेयर इज द वेट एक्टिंग? डाउनवर्ड्स. लेट द टेंशन बी टी डैश. नाउ पहले टेंशन कितना था? टी था. इधर भी टी था, इधर भी टी था. So can I say 2t was balancing mg? Yes sir. So what was t initially? mg/2. ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना. ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है.
अब यहाँ पर टी डैश हो गया और हमको मालूम है ये घूम रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? टॉर्क बनेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आई अल्फा, और टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इन, I'll apply law of moments about this point. So can I say mg into L by 2? Because इसका टॉर्क तो जीरो है ना टी डैश का, बिकॉज वो वही पॉइंट पे है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट दिस पॉइंट इज जीरो ड्यू टू टी डैश। It is only mg into L by 2 is I about the rod about the end is ml square by 3. Yes, sir. बोलो अल्फा। Yes, sir. यहां से m l तो अल्फा का वैल्यू कितना है आपको? 3g by 2l। ये अल्फा मिला, बराबर? बराबर है बेटा? ओके Yes, sir. ओके Yes, ओके sir. ओके ओके। नाउ if this point, again I am drawing, ये कौन है? टी डैश है, ये कौन है? mg है। कैन एनीवन टेल मी ये ऐसे घूमने वाला है, जब ये घूमेगा तो सेंटर इज गोना परफॉर्म सर्कुलर मोशन। Yes, sir. तो सेंटर के पास यहाँ पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आर अल्फा। R alpha. Yes, व्हाट sir. इज R आर? alpha. L by 2। L by 2. Yes. एंड अल्फा का वैल्यू पीछे से कितना मिला हमको? 3G by 2. 3g by 2l. So can I say 80 came 3g by 4? Yes or no?